everyone. Today we will discuss Indian Forest Act 1927. So this act is enacted on 21st of September 1927. This act contained 8 chapters and 85 sections. Though it has 86 sections, but 86 section has been repealed. So this act actually enacted to preserve and safeguard the forest in India. Of course, as you all must interpret it by its name, Indian Forest Act. The act was enacted for securing and preserving the forest in India. Indian Forest Act actually consolidated all the acts which were there before the 1927. Right? So this is basically an act which has consolidated all the earlier act related with forest protection. So the act actually makes the provision which gives power to state government to declare any area a reserved forest area. Okay, so let's start with the sections. Of course, first section is short title and extent. So short title is Indian Forest Act 1927. It extends to whole of the India, right? Section 2 interpretation clause. Interpretation clause में important है 2(1). Section 2 subclause 1, that is cattle. So cattle includes what? Elephant, camels, buffaloes, horses, lambs, goats, etc. Next is 2(2) forest officer. कौन होता है फॉरेस्ट ऑफिसर? वो जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और कोई अदर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड होता है वो देता है उसको फॉरेस्ट ऑफिसर की पावर, उसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट ऑफेंसेस. व्हाट आर द फॉरेस्ट ऑफेंसेस? ऑल द ऑफेंसेस हैंडल्ड अंडर दिस एक्ट आर कॉल्ड एज फॉरेस्ट ऑफेंसेस. नाउ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपकी ये फॉलोइंग चीजें आती हैं. क्या क्या आती है? पहले तो होता है टिम्बर, चारकोल, वुड ऑयल, रेजिन, बार, लाख, महुआ सीड्स एंड महुआ फ्लावर्स. राइट. नेक्स्ट इज ट्री. अब here I just want to mention that there is an amendment took place in November 2017. Through that amendment, this section has been amended. This 2 subclause 7 has been amended. Now earlier what happened, timber was timber was collected and takes from one place to other place only with the prior permission of the state government. Means state government has the power to make all the rules related with timber. But after that November 2017 amendment, now anyone can take timber or as a tree for its benefit. So basically it give a benefit to the tribal community. Okay, let's come to next point. Wild animals and skins, tusk, आपके bones, cocoon, honey, wax of animals or wild animals, these are also included in forest produce. ठीक है. सेक्शन 3 की बात करते हैं. सेक्शन 3 कहता है पावर्स ऑफ आपका रिजर्व फॉरेस्ट. किसके पास पावर होती है किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की? जैसा मैंने आपको पहले बताया, इट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर एनी एरिया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया. Section 4 talks about notification by state government. Whenever a state government declared any area as a forest reserve area, it is issued a notification. It is issued a notification in the official gazette regarding the same. And what it specify? It specify the situation and limits of such land. Right? Next is appointing an officer called a forest settlement officer. और जो एरिया है जिसे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया कहते हैं उसके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर. फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो होता है वो उस पूरे एरिया का कितना एक्सटेंड होगा, क्या क्या राइट्स अवेलेबल होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करेगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 5. सेक्शन 5 कहता है बार ऑफ अक्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स. मीन्स no right shall be acquired in or over the land comprised in such notification except
एक्सेप्ट बाय सक्सेशन और बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया होंगे वहां पे किसी को भी लैंड अक्वायर करने का राइट या परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन के थ्रू कर सकते हैं आप, या स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब सेक्शन 6 कहता है प्रोक्लेमेशन बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। जैसे कि मैंने बोला आपको सेक्शन 5 में जो नोटिफिकेशन देना है वो नोटिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर नेबर जो एरियाज हैं जो जिनकी लिमिट में वो फॉरेस्ट एरिया आएगा उन नेबरिंग एरियाज में भी वो जो प्रोक्लेमेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफिसर को जो कि 3 मंथ का होगा। उस 3 मंथ में क्या होगा कि जितने भी लोग हैं जिनका उस एरिया में कोई इंटरेस्ट है या राइट है लैंड पे वो क्लेम कर सकते हैं बिफोर किसके, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को। नाउ सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट इंक्वायरी बाय द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ ऑल द क्लेम्स। जितने भी क्लेम सेक्शन 6 में आए हैं उनकी इंक्वायरी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर करेगा। सेक्शन 7 में इंक्वायरी कैसे करेगा, बाय द असरटेनमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ के और उन व्यक्तियों से बात करके जिनको इस राइट के बारे में नॉलेज है। ये आपका एविडेंस एक्ट में भी आता है कि जब किसी को किससे हम पता लगाएंगे कि ये राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो पर्सन जो अक्वेंटेड है उस राइट से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। सो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर किस तरीके के फंक्शंस कर सकता है, वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पास पावर होगी सिविल कोर्ट की तरह मैटर को डील करने की, और उसके पास पावर होगी एंटर करने की, इंस्पेक्ट करने की, फॉर डिमार्केशन, फॉर मैप मेकिंग किसी भी लैंड में। सेक्शन 9 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ राइट। अगर कोई भी क्लेम जो कि सेक्शन 6 में मेंशन है, क्लेमेंट अगर विद इन दैट 3 months of the time period has failed to contact to that officer, then उसका राइट जो है वो एक्सटिंक्विश हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 10 बात करता है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब क्या है, ये भी एक क्लेम होता है जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो रेजिडेंट्स होते हैं, विलेजर्स, ट्राइबल्स होते हैं, वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना चाहते हैं। अब बताइए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जंगल के एरिया की कटान करते हैं हम, उस कटान के बाद उसको सींच के कल्टीवेबल बनाते हैं, फिर वहां पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। उसके 2-3 साल बाद जब वहां की लैंड फिर से अनफर्टाइल हो जाती है तो विलेजर्स क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़ के दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया होता है उस पे परमिशन मांगते हैं आपका एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसको कहते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसकी परमिशन के लिए भी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के पास क्लेम देना पड़ेगा आपको, और इसमें फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड करेगा अपने स्टेटमेंट, क्या वो ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। इस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो होगा वो अपनी सारी रिपोर्ट विद ऑल द एविडेंसेस स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। सेक्शन 11 बात करता है पावर टू अक्वायर लैंड ओवर विच राइट इज क्लेम्ड। सो जिस भी तरीके की हमने राइट क्लेम की बात करी है, या वो सेक्शन 9 हो या सेक्शन 10 हो, तो ऐसी कोई लैंड होती है जिसपे कोई अपना राइट क्लेम करता है तो वो या तो एडमिट करता है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर या रिजेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो क्लेम एडमिट हो जाता है तो वो लैंड फिर एक्सक्लूड हो जाती है उस प्रपोज्ड फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के। अब क्या होता है इसके बाद, अगर एडमिट हो गई तो वो एक्सक्लूड हो गई, पर अगर वो लैंड भी सरकार को चाहिए होती है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जो भी प्रोविजंस मेंशन है उन प्रोविजंस के दायरे में स्टेट गवर्नमेंट उन क्लेमेंट से वो लैंड अक्वायर कर सकती है। नाउ सेक्शन 12 बात करता है ऑर्डर्स ऑन क्लेम्स टू राइट ऑफ पैस्चर। नाउ व्हाट इज पैस्चर? पैस्चर इज ग्रेजिंग, चराना, और टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होता है इस रिगार्डिंग वही ऑर्डर पास करता है। मतलब अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि मुझे इस एरिया में ग्रेजिंग करनी है, अपने जानवरों को चराना है, या जो यहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको मुझे यूज करना है सेल के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को एक
क्लेम अपना देगा। सेक्शन 13 कहता है रिकॉर्ड्स टू बी मेड बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर व्हेन पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 12। अगर सेक्शन 12 में फॉरेस्ट ऑफिसर कोई भी ऑर्डर देता है तो उसे इस ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सेक्शन 14 बात करता है अगर फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ने सेक्शन 12 में दिए गए जो क्लेम हैं उनको एक्सेप्ट किया है तो उसे ये रिकॉर्ड करना होगा कि किस एरिया तक वो राइट एक्सटेंड करेगा, ठीक है, किस मैनर में एक्सटेंड करेगा और कितने नंबर्स ऑफ कैटल्स होंगे जो पर डे ग्रेजिंग के लिए उस एरिया में आएंगे, ये रिकॉर्ड फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को रखना पड़ेगा। सेक्शन 15 आपकी बात करता है आफ्टर मेकिंग अ land under 14 the forest settlement officer shall at the best of his ability means कि जब आपने एक रिकॉर्ड बना लिया है अंडर 14 तो आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से उस राइट है वो जो क्लेम है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 16 कहता है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट इफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है, सॉरी 16 इज yes continuation of right अगर फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर फाइंड इट डिफिकल्ट अंडर सेक्शन 15 टू मेंटेन दी फॉरेस्ट देन वो क्या करेगा, वो इस फॉरेस्ट को अदर किसी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको अदर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको मंथली पे करके दे देगा। इसको कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ राइट, आई एम सो सॉरी, कम्यूटेशन ऑफ राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है अपील की बात करता है। वो अपील क्या होगी, ऑफ कोर्स जहां जहां पे ऑर्डर आए हैं अगर उनसे कोई पार्टी अग्रीड है तो वो अपील करेगी। कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं आपके, अंडर सेक्शन 11 बात करता है आपकी लैंड एक्वायर करने की, 12 बात करता है आपको ग्रेजिंग राइट देने की, 16 बात करता है आपको कम्यूटेशन की। तो अगर इन सारे जो ऑर्डर्स हैं फॉरेस्ट जो आपका सिक्योरिटी फॉरेस्ट ऑफिसर का, उससे अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप अपील कर सकते हैं। किसके पास कर सकते हैं, एक कोर्ट जिसे फॉरेस्ट कोर्ट कहते हैं, कौन फॉर्म करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसको जाकर के आप अपील दे सकते हैं। और जब तक वो कोर्ट फॉर्म नहीं होती है या एस्टैब्लिश नहीं होती है तब तक अपीलेबल